पार्टिसिपेंट्स आप लोग अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। ओके सर। म्यूट कर लीजिए। वंदना जी, just before few days we have discussed about the inclusive education. Today we have 1 minute. Yes, I was discussing about the last lecture of my general topic, that is inclusive education. Okay. Today we have, I will say that the second part of that topic, that is reaching to unreached, that is inclusion of differently able person. This today's discussion will especially focus on those students and those people who are differently able, that is having different type of disabilities like visually challenged, orthopedically challenged, multiple disability like slow learners and like this. But today I'm going to focus on differently able persons or students. Participants, there is one more very important quote which I mentioned over here, that ignorance is a guarantee of marginalization. If anyone is ignored, he will be always at the marginalized section, marginalized part of the society. There is one data which I have collected: 1 billion people, or 15% of the world population, experience some form of disability, and disability prevalence in higher. Uh, it doesn't mean that everyone is orthopedically challenged or visually challenged. There are so many range of disabilities, and if you just collect those disability and types of disability, you will find more or less about 15% of the world population is suffering from one or other type of disabilities. Nearly 2/3 of individuals with disabilities live in developing countries and sustain themselves with less than $1 per day. One more very striking fact is that 2/3 of the individuals with disabilities live in developing countries. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि what is the share of the disabled population in urban areas and rural areas. Now today I'm just telling you the situation also more or less same as far as the global scenario is concerned. People who are disabled living more in developing countries where the facilities and amenities are less as compared to the developed, while their life style, or you can say their sustenance, or you can say their per day expenditure is less than $1 per day. So persons with disabilities are more likely to experience adverse socioeconomic outcomes such as less education, poor health outcomes, lower level of employment, and higher poverty rates. This is another, I will say, the key point of our deliberation, that person with disability more likely to experience, whether they are from the socioeconomic, low socioeconomic background or adverse socioeconomic background, or you can say that having the less education, poor health outcome, lower level of employment, there are very less number of employed person who are disabled, and higher poverty rates. And recently we have faced, before 2 to 3 years, COVID-19 continues to have wide-reaching impact across the globe. ये तो एक ऐसा आपदा थी, एक ऐसी, I will say that it was a kind of a pandemic that not only affected to these population, but it affected generally to all the population at global level. So just imagine if the situation is like that, how you can, what you can imagine and how you can imagine. हम लोग जब इतना affected हुए थे, तो what to talk about those population who are suffering from such one or other type of disabilities. So it's important to note how persons with disabilities are impacted by the pandemic, including health, education, and transport consideration. हमारे लिए हमारे हेल्थ कंसर्न की बात आ गई थी, हमारे हेल्थ पे बात आ गई थी, हमारे लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, एजुकेशन रिसीव करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, और एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन तो कम्प्लीटली बंद ही थे. तो व्हाट टू टॉक अबाउट दोज पीपल. हमने कभी इमेजिन किया कि उनके बारे में क्या हुआ होगा जो
तकरीबन इतनी पॉपुलेशन है ग्लोबली, उनका क्या सिचुएशन रहा होगा उनके उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोविड से पूरी दुनिया जूझ रही थी। 98% of all students with disability lack access to primary education. They are socially, economically and physically excluded and marginalized from the mainstream of society. एक स्टडी आई थी, उसका ये डेटा था, लैंग साहब थे, उन्होंने स्टडी किया था कि ये सिचुएशन है प्राइमरी लेवल पे। People with disabilities face barrier in accessing the services. जो डिसेबल्ड होते हैं उनको जाहिर सी बात है बहुत से बैरियर्स होते हैं, जो हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था इन जनरल, आज हम लोग इन पर्टिकुलर देखेंगे। जहां तक हेल्थ की बात है, जहां तक एजुकेशन की बात है, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रांसपोर्ट अमंग अदर्स, ये सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो अगर शायद हमारे लिए भी ये प्रॉपर ना हो तो हमें भी चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, करने पड़ सकते हैं। तो आप थोड़ा इमेजिन करिए कि डिसेबल्ड पॉपुलेशन के लिए किस तरह से ये चैलेंजेस एक हर्डल की तरह काम करते होंगे। People with disabilities are more likely to be unemployed than non-disabled people. आप जस्ट इमेजिन करिए कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और नॉन डिसेबल्ड जो हैं उनसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज आर 44%. आगे बढ़ते हैं। इफ यू सी द इंडियन सिनेरियो, यू विल फाइंड ऑफ कोर्स इंडिया नीड्स ग्रोथ, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट नीड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी आप देखेंगे एनईपी 2020 के लाइट में, मैं लास्ट में एक पार्ट वो भी डिस्कस करूंगा आपसे कि किस तरह से एनईपी 2020 ने फोकस किया है particularly this population of our country, that is differently abled population. No Indian should be left behind. This means the education for all, even at higher education level, research, innovations and create products, services which are affordable. एक ऐसा हमारे में एक माहौल पैदा करने की जरूरत है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है जहां पे एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट फुलफिल हो सके, स्पेशली फॉर दोज हु आर डिसेबल्ड, एंड that environment must be affordable for all the population irrespective of their abilities and disabilities. India has second largest education system in the world. It's very known, well fact, with 200 million children between age of 6 to 14, around 25 million whom are out of school. ये World Bank 2004 की report है. However, bearing in the mind that apparently only 35% of children are registered at birth, in UNICEF की रिपोर्ट है ये, other estimate between 35 to 80 million out of school of children, एक सिंगल की रिपोर्ट आई थी 2005 में। ये सारे मैं डेटा इसलिए दे रहा हूँ just to comprehend what is the situation of those population who are differently able population. एक सेंसस रिपोर्ट है 2011 की, जिसका एक बहुत ही फैक्ट और वेरी पॉपुलर ये इंफॉर्मेशन है कि द सेंसस 2011 फाइंडिंग ऑफ 2.2% डिसेबल्ड पॉपुलेशन, दैट इज आप कह सकते हैं कि 2,19,06,769 लोगों की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन है। ये सेंसस की रिपोर्ट है, ये कोई ऐसे मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा हूँ इसको। एक एनजीओ ने इस डेटा को भी चैलेंज किया और वो कहती है, उस एनजीओ का कहना है कि चैलेंज बाय एनजीओ इन द फील्ड ऑफ हु बिलीव द फिगर इज टू बी क्लोजर टू 6% उनका ये कहना है, थॉमसन एंड थॉमसन की रिपोर्ट में कोट है ये कि ये पॉपुलेशन 2.2% नहीं है, ये पॉपुलेशन तकरीबन 6% तक है जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है, इसको सेंसस ने मीनिंग देयर बाय this report have challenges this NGO challenges the report of and the number of population of the disabled person. ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि इंडिया जो है किन कैटेगरीज पे डिसेबल्ड पॉपुलेशन को कैटेगराइज करता है, और वो 5 कैटेगरीज है, जैसे साइट विजुअली चैलेंज पॉपुलेशन, स्पीच, डम, हियरिंग, डीफ, लोकोमोटर जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज होते हैं, एंड मेंटल रिटार्डेशन व्हिच एक्सक्लूड disabilities such as asthma. Mental retardation, that is a mild mental retardation which can be amendable, which can be educable, आप कह सकते हैं उसको, जिनको पढ़ाया जा सके, उस लेवल तक के सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आप कह सकते हैं कि in addition a person has to be medically certified as having the 40% in one or other type of disability. जो मैंने ये 5 तरह की डिसेबिलिटी बताई है, इसमें जो भी 40% तक होगा उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड ही विल बी काउंटेड एज डिसेबल्ड पर्सन एंड ही कैन रिक्वेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल बेनिफिट्स ऑफ डिसेबल्ड पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे जो 2002 में आई थी,
उसकी रिपोर्ट थी कि ओनली 45% ऑफ डिसेबल पॉपुलेशन इज लिटरेट एंड 9% हैज सेकेंडरी लेवल एजुकेशन और हायर. Among children 0 to 19 years, 1.7% have disability. Furthermore, boys 1.81%, then girls 1.58% in India have disability across the age group. इसको मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश किया है. आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो भी टोटल पॉपुलेशन है 5 to 19 एज ग्रुप में, उसका जो विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 17.24%. जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है वो 19.46% है. जो स्पीच यानी दोज हु कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली हैविंग द स्पीच प्रॉब्लम, they constitute 9.91%, and those who are orthopedically challenged, whether it is by birth or after birth, they constitute 14.12%. Mental illness जो मैंने बात किया था, except Austin disease, that constitute 8.3%, and mental retardation, that is 1.94%. Any other मैं कुछ apart from these disability, if someone is having different type of disability, वो आपका constitute करता है 19.89%. And if someone is having two or more than two disabilities, that constitutes multiple disabilities 9.13%. This is the scenario of the population of disabled population, that is 5 to 19 age group. Now the distribution of differently abled person as per the census 2011, that 29% population is found as far as disabled population is concerned in urban areas. मैं इस year age group को इसलिए target किया हूँ because we are just dealing with this age group 5 to 19 years, और जो रूरल एरियाज में रहते हैं they constitute 71%. ये 10 साल 12 साल पुरानी डेटा है, तो आप थोड़ा बहुत इसको डेटा को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी में कम और ज्यादा हुआ हो. That's but as far as the total scenario is concerned, more or less lies these percentage, that is 29% in urban areas and 71% in rural areas. Again, I will mention over here that this contradiction, that more population of disabled residing in rural areas and less population, that is disabled population resides in urban areas, while the paradox is that the facilities as far as the rural areas are concerned less as compared to the urban areas, but the situations are as far as the population is concerned, they are residing more in urban area or in rural areas, less in urban areas. That is also one of the challenge for those population that is disabled or differently abled population. If you say the statewide distribution as per census 2011 in our India, that at the India level disabled persons or population constitute, मैंने पहले बताया कि 2.21% है. In 15 states and union territories, the prevalence of disabled population and proportion of disabled person to the total population is higher than all India level. Among the states, union territories, Sikkim has the highest prevalence of disability, that constitute 2.98% of the total population of Sikkim, and Daman and Diu that reported the lowest prevalence of disability, that is 0.9%. ये दो एक्सट्रीम फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है. और आगे बढ़ते हैं. The highest number of disabled population in the form of state of Uttar Pradesh, nearly 50% of the disabled population belong to the one of the 5 states. Participants, you see this list of 5 states. Wrongly it has been 4 written, but 3 दो बार repeat हो गया है. तो आप इसको समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश constitute, that is UP, 15.5% disabled population of the total population of India. Maharashtra 11.05%, Bihar 8.69%, Andhra Pradesh 8.45%, and fifth one is West Bengal, that constitute 7.52%. Participants, one more striking feature I will put before you about regarding these 5 states, that these 5 states are not very well advanced. If we just accept थोड़ा सा मैं अगर कहूँ महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र भी सिर्फ बॉम्बे को अगर छोड़े, बॉम्बे को अगर एक्सक्लूड करें, तो ओवरऑल महाराष्ट्र भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट में तो मुझे नहीं लगता. बट इफ यू एक्सक्लूड द महाराष्ट्र, these all 4 states are not, I will say the कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली
लाइन वाले या फर्स्ट लाइन वाले स्टेट्स हैं इंडिया के, लाइक डेवलप्ड स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा एंड अदर स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु, यहाँ भी अभी भी आप देखें एज पर द स्टेट्स आर कंसर्न, दे आर कंसिडर्ड एज द बीमारू स्टेट्स, डेवलप अंडर डेवलप स्टेट, और लाइक बिहार आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, as far as the various facilities, amenities, and especially for the differently abled people population, it's still have so many problems. So again ये भी एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए कि आप कह सकते हैं कि जानने आए, स्टडी करने का एरिया है कि ये 5 स्टेट जो हैं, ये इसमें सब पूरी इंडिया के तकरीबन 50% डिफरेंटली एबल्ड और डिसेबल्ड पॉपुलेशन पाई जाती है, एंड रेस्ट 50% आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर इंडिया. Now, at all India level, 7.62% of the disabled person belong to the age of 0 to 6%. If you distribute like this, Bihar 12.48% is the highest, and Meghalaya 11.41%, and Kerala 3.3%. The state of Uttar Pradesh is the home for the highest number of disabled person. अगर हम 0 to 6 ईयर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसेबल्ड पॉपुलेशन पाई जाती है. एंड 4 स्टेट्स नेमली जो मैंने पहले बताया था, बिहार है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, टुगेदर कंट्रीब्यूट द 50% burden of the whole country as far as disabled population is concerned. Apart from observing these data as far as the Indian population of disabled are concerned, you will find one more very surprising fact that India is one of the few countries world over where the education of children with special needs does not fall within the purview of Human Resource Development Ministry. थोड़ा इस पे आप लोगों को और हमें भी सोचने की बात है कि are we not still treating them as a human being, because still we are not considering as a part and parcel of the Human Resource Ministry, or you can say we don't bring them in the purview of the Human Resource Development Ministry. It means that they are not being treated in our country as a human being. Yes, we had created another department or ministry, that is the Ministry of Social Justice and Empowerment. But why not in Human Resource Development Ministry? Why not in Ministry of Human Resource? Why not? We are just framing. Is the fault lies here as far as the failure of inclusive philosophy is concerned? ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो inclusion की philosophy इंडिया में है वो यहीं से फेल होना शुरू हो जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स हम मान ही नहीं रहे. Even though they are contributing a lot, if the opportunities are given, they are excelling very much as far as the if provided कि हमने उनको मौका दिया और उसके बाद वो परफॉर्मेंस ना करते हो. So this is also one of the very important fact which we must ponder over that कि क्यों ऐसा है, एचआरडी मिनिस्ट्री में इनको क्यों नहीं रखा गया, इनके बारे में वहां पे पॉलिसी प्रोग्राम क्यों नहीं जनरलाइज बनाई जाती है. स्पेसिफिक हमने क्यों कर दिया है कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिलेंगे और फिर उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज कर दिया, एंड सो मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर. सो लेट्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सोचने की बात है, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए रिसर्चर. द प्राइम फोकस ऑफ विच इज रिहेबिलिटेशन, नॉट एजुकेशन. और जो दूसरी एक फैक्ट है, हमेशा इसका हमारा फोकस ये होता है कि हाउ टू रिहेबिलिएट देम, कैसे इनको कहीं ऐसे जगह रख दिया जाए जहां पे ये खुशी खुशी रहें, खाए पिए और मस्त रहें. आई मीन टू से, तो व्हाई नॉट वी ऑलवेज थॉट एंड टॉक अबाउट दोज प्लेसेस, अबाउट दोज पॉलिसीज that they can be educated, they can be given proper education. So my another submission is this: India estimated 40 million children in the age group of 4 to 6 years. ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आगे बढ़ता हूँ. According to census 2011, that उसको थोड़ा सा अपडेट किया मैंने, 2016 का डेटा यहाँ पे लिया जो ऑथेंटिक और गवर्नमेंट का डेटा था. इन इंडिया आउट ऑफ 1.21 करोड़ पॉपुलेशन, अब तो बहुत काफी हमारी पॉपुलेशन हो गई है, 2.68 crore persons which are disabled in 2.21% of total population. Among the disabled population, 56% are male and 44% are females. This is another information which I want to give you. Majority of the disabled population resides in rural areas. वो मैंने बता चुका हूँ आपको. About 80% of Indian population lives in rural areas without provision of special schools,
ऐसी पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रहती है उसमें कहीं भी स्पेशल स्कूल का प्रोविजन आज भी नहीं है. An estimate shows that 8 million children out of school in India, a methodology report is 2009, many of whom are marginalized dimensions such as poverty, gender, disability and caste. इसके बिना पे इतनी % population जो है वो बाहर है. There is one very beautiful quote which I have mentioned here. After knowing these situations, Emma Thompson's quote that being disabled should not mean being disqualified from having access to every aspect of life. ये मैंने पिछले भी क्लास में मेंशन किया था कि ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा या कोई एक बंदा अगर ब्लाइंड है तो ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट टॉक, ही कैन नॉट थिंक एंड ही कैन नॉट क्रिएट. He can do, but he cannot see only. He cannot watch only. That is what Emma Thompson mentioned in his 2 lines quotations. Now, the question arises: what are the needs and challenges of for equity and inclusion for these differently able persons? सोचने की जरूरत है कि आखिर इनकी challenges क्या है? How to include them? And then the next question is, how will an inclusive environment meet the needs of differently able person? How quality education can be effectively and efficiently delivered for differently abled person? So participant, these 3 questions are before you, before us, and I will say that we will try to answer these questions jointly with for the next part of this discussion, that this can only be possible through inclusive process or inclusive education. ये सिर्फ तभी संभव है, तभी मुमकिन है जब हम इंक्लूसिव प्रोसेस को अडॉप्ट करें या इंक्लूसिव एजुकेशन को हम जनरलाइज करें अपने एजुकेशन सिस्टम में. बट दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेस. लेकिन आखिर ये जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत अब क्यों कर रहे हैं? क्या सिचुएशन थी जो पहले नहीं किया? उसके लिए मैंने कुछ 5-6 पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि हमारे इस डिसेबिलिटी और या हमारे इन बच्चों का जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहलाते हैं. अब हम उसे डिसेबल भी नहीं कर सकते हैं. एज पर दी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वी कैन ओनली से दैट डिसेबल. इसलिए आपने देखा होगा कि अब ट्रेनों पे विकलांग का डब्बा नहीं लिखा रहता है, अब बाकायदा लिखा रहता है कि दिव्यांग जन. It means that already Supreme Court have given so many judgments that we cannot call these people as a disabled people. We will always call them differently abled persons. So my participants, my dear friends, I am going to discuss about the few points as per their historical development, or you can say the historical sociological development of these population in these 7 points. Process of inclusion is not a very new phenomena. मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इट इज एन एंशिएंट फिनोमेना. और लेकिन वाकई में था क्या इनके साथ? अगर हम इसको एरा में पर समझने की कोशिश करें तो इट वाज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, hundreds of years they have faced challenges, and that challenges are not challenges of stepping from one step to another stairs to stairs. उनको लिफ्ट पे जाने वाली बात नहीं थी. बट द एरा ऑफ एक्सक्लूजन, जो हमारा एरा ऑफ एक्सक्लूजन का पीरियड गुजरा इनके लिए, खासतौर से डिसेबल पर्सन्स के लिए, वो ऐसा एरा था जिसमें कि दे वर डायरेक्टली एक्सटर्मिनेटेड और अबॉन्डमेंट. उनको या तो हम मार देते थे या सोसाइटी से बहुत दूर कहीं छोड़ आते थे. वी वेर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू अपब्रिंग देम सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन. अगर किसी के समाज में, किसी के घर में इस तरह के बच्चे पैदा हो जाते थे तो हमारी सोसाइटी उन्हें अलाउ नहीं करती थी. क्यों अलाउ नहीं करती थी? क्योंकि वो ये मानती थी कि दे आर लाइक कर्स ऑफ आवर सोसाइटी. ये तो कोई पाप किया होगा हमारी समाज ने, तो ऐसा बच्चा जन्म लिया किसी के परिवार में, किसी की फैमिली में. तो एक ये भी फेज इन लोगों ने देखा, those who are differently abled children, differently abled population, कि उनको पैदा होते ही मार दिया था, खत्म कर दिया था. तो एक काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा. उसके बाद नेक्स्ट जो एक आया वो हमने उनको एक्सेप्ट किया. एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट वी हैव एक्सेप्टेड इन what way. We have accepted in just like, I will say in simple, very simple word, just like today we have accepted the animal as a pet animal. कि हमने उनको एक पेट एनिमल की तरह रखा घरों में, जिससे कि हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो थोड़ा सा उनसे खेल लेंगे, थोड़ा उनसे
मजाक कर लेंगे, थोड़ा उनको छेड़ लेंगे, थोड़ा उनको परेशान कर लेंगे. एंड दैट टू एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेटस, सिंबल ऑफ स्टेटस, कि इनके घर में एक ऐसा इंसान का बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसके 2 हाथ नहीं है, 1 हाथ नहीं है, 1 पैर नहीं है. एंड दे वर ट्रीटेड लाइक दिस. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज फाउंड दैट दे हैव बीन केप्ट इन द केज. पिंजड़े में रखा जाता था उनको. एंड द नॉर्मल चिल्ड्रन वे आर जस्ट यूजिंग देम एज ए सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट. सो ये भी काफी दिनों तक चलता रहा. नाउ व्हेन द next era came, that is the third era of prohibition, the churches and other institutions have just legalized them. No, they should not be given place in the society because they are like witchcraft. ये तो कुछ ऐसा वो है, क्या कहते हैं कि कुछ अभिशाप, या आप इसको ऐसे कहें विचक्राफ्ट, इसको आप कह सकते हैं कि कुछ क्या कहा जाता है कि एक तरह से वो वर्ड आता है, बड़ा अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है, कि ये लोग तो एक उसके पात्र हैं, किसी कोई ऐसा इन्होंने पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इनको इस तरह से बनाया. तो अब इसको लीगलाइज कर दिया गया. ये डिस्क्रिमिनेशन जो था, अभी तक तो समाज जो थी हमारी उतनी अवेयर नहीं थी, उतनी एडवांस नहीं थी, तो उसने उनको एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन इसने कह दिया कि नहीं, दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड, इन्हें मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में कोई जगह नहीं दी जाएगी. और बाकायदा ये चर्चेस से ऐलान हो गए कि ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं है. दे आर लाइक विचक्राफ्ट, ये भूत और इस तरह कोई बलाएं हैं, इनको ऐसे मौका और प्लेस समाज में नहीं मिलेगा. सो दैट हैज बीन आल्सो legalized for a longer period of time, and they have been I will say that denied for their human rights. They have been denied for their own rights. They have been denied for the right to live in the society properly and with a status. They have been not given for a longer period of time. But when society grew up gradually, advancement took place, people started knowing much more about these population. They have just institutionalized it. They have been kept in a separate institutions that is known as asylum. एक अनाथालय की तरह, आश्रम की तरह बना दिया गया. मोर और लेस हर बड़े शहर में इस तरह के आश्रम होते थे, जिसमें कि इस तरह के बच्चों को वहां रख दिया जाता था, और कुछ ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर आप कह लीजिए वो होते थे, जो उनको बेसिक उनकी एक्टिविटीज को सिखाने और समझाने के लिए अपॉइंटेड किए गए थे, और उनकी देखरेख के लिए उनको खाना वहां मिल जाता. बट दे हैव नॉट बीन इवन गिवन देयर ड्यू राइट्स. They have been not given the opportunity of mainstreaming in the society. और उस तरह के asylum हर जगह क्रिएट हुए बड़े बड़े शहरों में at global level, and they have been living their life in such a way that in asylum. Now the society grew up. They have entered in the 20th century, and the separate isolated setting were created, and that is known as special schools. एक नया कॉन्सेप्ट आया. उनकी हालात को, उनकी कंडीशन को देखते हुए कुछ इंसानियत जागी हमारी, तो हमने एक स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया कि ठीक है भाई, इनके लिए एक स्पेशल स्कूल खोला जाएगा जहां पे इनको बेसिक चीजें सिखा दी जाएंगी, कुछ पढ़ना लिखना सिखा दिया जाएगा, दैट्स ऑल. कुछ इनको अपना काम करना सिखा दिया जाएगा कि कैसे इनको नहाना है, कैसे इनको कपड़े पहनने हैं, कैसे, मतलब जो भी इस तरह के बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, वेदर दे आर ब्लाइंड, दे आर ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, दे आर मेंटली रिटार्डेड, पार्शियली they are visually challenged, they are dumb and deaf, उनके लिए इस तरह के कुछ एक आइसोलेटेड सेटिंग बनाई गई, जिसे हम स्पेशल स्कूल के नाम से जानते हैं. That was totally cut off from the mainstream of society. समाज से कोई उनका जुड़ाव नहीं था, समाज से उनका कोई ताल्लुक नहीं था. They have been separate isolation setting. Again, the agitation took place. Various philanthropists as well as the आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के लोग आए, जिन्होंने आगे बढ़ के आए, जिन्होंने सोचा कि नहीं, they have been treated, they must be treated as a human being, they must be given the opportunities to study, to read, to get education. तो उसमें क्या हुआ कि फिर हमने क्या किया कि ठीक है भाई, अब ये हमारे स्कूल में तो आएंगे, लेकिन नॉर्मल क्लास में नहीं बैठेंगे. They will be given a special section, they will be given a special classroom. Are you getting my point, participant? So this is what? This is Yes, sir. a special class. अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप लोगों को शायद याद हो, मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि जो इस तरह के बच्चे होते थे वो अलग सेक्शन में पढ़ते थे, चाहे वो बी सेक्शन हो, सी सेक्शन हो, डी सेक्शन हो,
और ए सेक्शन में सबसे अच्छे बच्चे होते थे, जो बहुत ही ब्रिलियंट। ये हम लोग जमाने में तो था, आई डोंट नो व्हाट इज प्रिवेलिंग नाउअडेज इन द स्कूल लेवल, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल। कोचिंग तो सेंटर ये, में अभी हो रहा है सर ये। सॉरी, सर कोचिंग सेंटर में हो रहा, अभी भी सेक्शन ऐसे डिवाइड होते हैं जो। अच्छा अच्छा, चलिए। खैर, कोचिंग सर सेक्शन से हम लोग को नहीं कुछ लेना देना है। जी जी वी आर सर। इन द मेन स्ट्रीम टीचर, तो हम जी उसे जी ही कोट कर सकते हैं, उसे ही डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज द एरा ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लास्ट एरा in which we are facing nowadays, participant, that is inclusive setting. We have not just completed this era. We are still struggling. Even we have not completed this 50%, I will say. We are still struggling. और अगर शायद हम इसे complete कर लिए होते तो हम आप इस टॉपिक पे आज बात ही नहीं कर रहे होते. And this is the era of inclusive setting, that is regular classes. And that regular classes are nowadays we are facing. Participants, inclusion describe much more the acceptance of children with disabilities in the mainstream. Of course, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सिर्फ उनको ले लेना अपने पास, उनको एकोमोडेट कर देना क्लासरूम में, ये इंक्लूजन नहीं है. आई स्ट्रांगली कंडेम सच काइंड ऑफ सूडो फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन, कि हमने उनको बिठा दिया, देखिए सर हमने बिठा दिया क्लास में और हम पूरा इनका ख्याल रखते हैं, हम इनको बहुत ज्यादा प्यार से बात करते हैं, हम इनको सारी फैसिलिटीज दे रखे हैं, सारी इनको फ्रीडम दे रखे हैं, आप काम करो ना करो. नो, दिस इज नॉट इंक्लूजन. इंक्लूजन मीन्स ट्रीट देम इक्वली, compel them to do their work on. Inclusiveness do not focus on the accommodation of these children in general education setting, but are focused on the restructuring of school, colleges and universities to accept and provide for need of the all students. That is the inclusion. Until unless you will not restructure your teaching process, you will not restructure your school system, college system, university system, and that structure must be disabled friendly, then you can say that yes, we are we are actually following the inclusive program, inclusive philosophy. And in inclusive program, what I mentioned in the second paragraph, that is specialized instruction, support and provided to any student who is in need of support without labeling him or her as a disabled. हमें ये नहीं कहना कि ये disabled है, हमें ये नहीं कहना कि ये physically challenged है. We have to treat them as if he has been provided by the Almighty God. उस पर मुझे कोई सवाल नहीं करना है. In other words, no discrimination is made among the able and disabled children. All the children is shades of their disability and welcome by making the same school and same class along with non-disabled peers. This is my one slide will give you a clear picture of the what is inclusion. ये एक मैं समझता हूँ कि इतना काफी है हमें और आपको समझने के लिए कि इंक्लूजन है क्या. अगर आप और पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए. जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंटीग्रेटेड को इंक्लूसिव कह देते हैं, इंक्लूसिव को इंक्लूसिव तो समझते ही नहीं है. एजुकेशन फॉर सम, हमने कुछ बच्चों को बैठा दिया और पढ़ाने लगे कि भाई ये थोड़ा सा कमजोर बच्चे हैं, तो वो इंक्लूजन नहीं है, वो इंटीग्रेशन है. हमारा मामला एकदम फिक्स है कि इस क्लास में कोई और दूसरा नहीं आ सकता है, दैट इज इंटीग्रेटेड, स्टैटिक है. लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑल आर बीइंग वेलकम इन द सेम क्लासरूम, दैट इज inclusive education. Collective teaching, no. Individualized teaching. हमें in spite of having different type of students in the classroom, in spite of including them in the same classroom, giving the place in the same classroom, we have to be monitor each and everyone according to their different labels, different criteria, different abilities and disabilities. Learning in isolated areas, learning in integrated areas. अगर हम किसी आइसोलेटेड में पढ़ा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जाके पढ़ा रहे हैं, तो वो इंटीग्रेटेड होगा, इंक्लूसिव नहीं होगा. लेकिन हम उन्हें ला के नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं, तो वो इंक्लूसिव होगा. एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचिंग, कि नहीं भाई ये विजुअली चैलेंज है, ये तो थ्योरी ही पढ़ेगा. ऑफ कोर्स ही विल स्टडी थ्योरी, बट देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स. अब क्या होता था, बहुत से लोग क्या करते थे कि नहीं ये सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश. ऐसा नहीं है. दे हैव द टैलेंट टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं. डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव, डायग्नोस्टिक पहले हम पता करें कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करें. नो, दिस इज इंटीग्रेटेड अप्रोच. होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, हमें जानना है, पढ़ाते वक्त हमें ये केयर नहीं करना है
कि ये डिसेबल्ड है, हमें सिर्फ जानकारी रखनी है और उसका ऑटोमेटिकली हमें ख्याल करके पढ़ाना है। दैट इज इंक्लूसिव होलिस्टिक अप्रोच, सबको पढ़ाना है, सारे मेथड से पढ़ाना है। डिसेबिलिटी व्यूज, करिकुलर व्यू, करिकुलर को हमें ध्यान में रखना है, डिसेबिलिटी को ध्यान में रखना है। सर ये लिंक जरा ओरिजिनल वाला भेज दीजिएगा, ये बच्चों को, 2 बच्चे वो उससे नहीं जुड़ पा रहा। सर लिंक यही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज द 9th, लेबल चिल्ड्रन डिसेबिलिटी वाइज, अपोज ऑल काइंड ऑफ लेबलिंग। हमें किसी बच्चे को, मैंने पहले बताया ना कि हमें किसी बच्चे को ये नहीं कहना है कि ये हैंडीकैप्ड है। हम क्लास में अक्सर ये कह देते हैं, बेटा जरा उसका ख्याल रखना, वो हैंडीकैप्ड है, वो ब्लाइंड है। नो, वी हैव नॉट टू, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ राइट्स। Even we cannot say as a teacher, and we cannot instruct to the normal children to talk like this, to say like this to those children who are suffering from one or other type of disabilities. So participants, the biggest barrier to the inclusion for differently abled children, I have invited some of the students who will talk to you about this disability, their own disability. For them, I will just take 30 or 40 seconds to let them join, and they will share their own experience as far as their own disability is concerned. Just wait 1 minute. जी सर। ओके सर। Bilal, have you joined? Yes, sir. Okay, thank you very much. Participants, there are 3 I've invited 3 participants. 1 minute. Chaliye Bilal, just you share your own views. Okay, sir. Okay.
Participants, this is Mr. Bilal Ahmed. He is just finished his MEd from Department of Education AMU Aligarh, and he is orthopedically challenged student, and he has no proper his both limb. ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या इनके प्रॉब्लम्स रहे, कैसे ये ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हो गए? He is using what to call Baisakhi every time, but he is a very brilliant student of my department, and he will share himself about his abilities and disabilities as well as his educational challenges and what he expects from us, that is the faculty member. I think, Bilal, you are welcome. Now you can share your own views. Okay, sir. Fine, sir. Sir, mute कर लीजिए. माइक में खराब है. चलिए बोलिए बिलाल. Okay, sir. Good morning to all of you. Very good morning, Bilal. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Good morning. जी, जैसा कि सर ने अभी मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोगों को, तो मैं भी अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं अपना ग्रेजुएशन से लेके एमएड तक की जो सारी पढ़ाई की है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया है और बीएड में केरला में एमयू की एक सेंटर है मल्लापुरम सेंटर, वहाँ से मैंने किया है। तो अभी तक मैंने जो अपने पढ़ाई पीरियड में जो चैलेंजेस फेस किया है स्टार्टिंग से लेके अब तक, मैं कुछ पॉइंट्स उसको आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। मतलब क्या चीज़ चैलेंजेस होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, मतलब किस तरह की चीज़ें टीचर की तरफ से आते हैं। तो ऑलमोस्ट सर यहाँ पे सब टीचर्स ही हैं। Yes, yes. जी जी. बिल्कुल. Yes, Yes. yes. All our faculty members from the departments, colleges, universities. जी सर, जी सर। एक्चुअली जब मैं शुरू के मतलब 6th क्लास 5th क्लास उधर जब मैं था तो एज मेरी बहुत कम थी, तो इतना ज़्यादा चीज़ें माइंड नहीं करते थे हम लोग, नहीं उतना कैपेसिटी होती थी समझने की कि क्या चीज़ें मेरे साथ अच्छी हो रही हैं, क्या चीज़ें बुरी हो रही हैं, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे मतलब लगने लगा, मुझे मतलब बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन में आया अलीगढ़ तो बहुत प्रॉब्लम फेस किया मैं यहाँ पे। प्रॉब्लम फेस इस सेंस में किया मैं कि मैं आर्ट्स फैकल्टी में क्लास करने के लिए जाता था तो मेरी कोई भी ऐसी क्लास नहीं थी जो ग्राउंड फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर टॉप फ्लोर पे हुआ करती थी। और मैं इस सिलसिले में एक बार एक प्रोफेसर थे जो हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, मैंने उनसे बात किया कि ये दुश्वारी है मेरे सामने, इसको आप अगर कर सकते हैं तो इस दुश्वारी को, इस परेशानी को सॉर्ट आउट करिए। तो उन्होंने मतलब एक होता है कि रैपो बिल्ड करके इंसान बात करे, थोड़ा सा लगे कि हाँ चीज़ें नहीं हो सकती, और एक होता है कि एकदम डायरेक्टली मना कर देना, बोल देना कि नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं कुछ होता। तो इस तरह की चीज़ें आई। तो फिर उसके बाद मैं किसी तरह उसको फेस किया, फेस करने के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर जब मास्टर्स में मैं आया तो मास्टर्स में तो खैर क्लास एक जगह फिक्स्ड की गई और वो अक्सर होती भी है ये, तो उसमें मैं नहीं इतना प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन मैं जब बीएड के लिए मल्लापुरम गया तो मल्लापुरम में वो पूरा हिली एरिया था, वहाँ पे थी दुश्वारियाँ, लेकिन मैंने वहाँ पे जो टीचर हैं उनकी जितनी मैं तारीफ करूँ कम है, क्योंकि वहाँ के टीचर ने
हर एंगल से, हर एतबार से कहीं से नहीं मतलब हमें लगने दिया कि मुझे किसी तरह की दिक्कत यहाँ हो। जिस तरह की चीजें होती थी वो वहाँ पे मुझे फेवर करते थे, और किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो उनसे अगर शेयर करे तो उसको वो सुनते भी थे और उस पे वो काम भी करते थे और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करते थे। तो मेरा मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि एक टीचर जो भी हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनके सामने आती है। तो कभी मतलब ऐसा बिहेव, स्पेशली इस कंडीशन में जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट होते हैं, ऐसा बिहेव ना हो कि जिससे उनको हर्ट हो, परेशान हो, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद इतना परेशान रहते हैं अपने लाइफ को लेकर के, अपने परेशानी को लेकर के, कि अगर कोई उनसे कोई बात बोलता है तो वो तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेशन रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। तो लेकिन कुछ लोग हैं क्या कि चीज इन सब चीजों को नहीं समझते हैं और कुछ ना कुछ डायरेक्ट जो है बोलते हैं, कहते हैं, तो बड़े जल्दी वो उस चीज को माइंड कर लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन अगर हो कहीं तो थोड़ा यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि क्योंकि सारे यहाँ पे हमारे टीचर्स ही हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो कहीं भी इस तरह की सिचुएशन आए तो इस चीज को थोड़ा सा बहुत केयरफुली बिहेव करें। और यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू बिलाल जी। Thank you so much, Bilal ji. Thank you, sir. Thank you, Bilal ji. Thank Thank you, you. Bilal. थैंक यू बिलाल जी। Thank you, sir. Thank you. Participants, now I Thank will you, sir. invite Mr. Muhammad Ayub. Ayub, can you Yes, hear sir. me? Yes, sir. Bilal, thank you very much for your experience. Yes, sir. Am I, sir, audible? Yeah, you are very much audible, Ayub. Participants, he is Mr. Ayub, Muhammad Ayub. He is pursuing his PhD in political science. He is, mashallah, JRF in the same discipline. And he is visually challenged. Congratulations. कब ये इनके अंदर ये विजिबिलिटी आई, पहले थी कि नहीं थी, बाय बर्थ है? आई थिंक इट विल बी बेटर इफ वी हियर फ्रॉम his own voice. So Bilal, sorry, Ayub, now mic Yes, over sir. to you, and you share your own experiences as far as your childhood is concerned, your education is concerned, and what you expect from us, that is the teachers, faculty, and teacher community. Ayub. Thank you, sir. Good morning, all the dignitaries, students, and thank you, dear Aftab sir, for providing me this opportunity to present my views, to present my problems, and to present some solutions that how teachers should do, what the teachers should do for this community. So, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और मैं कश्मीर के एक फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। आप सब वाकिफ़ होंगे, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक फार फ्लंग एरिया है जो एक रूरल एरिया है, और मैं वहाँ ही पैदा हुआ हूँ और उसी ज़िले में मैंने फर्स्ट से लेके 12th तक की सारी पढ़ाई वहीं से की है। और मेरी जो ब्लाइंडनेस है वो बाय बर्थ है, बट ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको आरपी बोलते हैं, रेटिनेट्स पिगमेंटोसा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दिन ब दिन आंखों की रोशनी जो है वो डिक्रीज होती है, और 8वीं क्लास तक, जब मैं 8th तक पढ़ता था, तब तक मैं कहीं थोड़ा सा अपने आंखों से पढ़ लेता था, यानी किताबों को या जो भी होता था इस रिलेटेड वो मैं पढ़ लेता था। बट उसके बाद 9th में 10th में मेरी रोशनी बहुत कम हो गई और उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाया, और उसके बाद मैंने ऑडियो डिवाइसेस या जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मैं लेटर डिस्कस करूंगा कैसे किया, वो यूज़ किया। और 12th के बाद मेरा जो एडमिशन है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ,
और फिर मैंने यहाँ बीए किया पॉलिटिकल साइंस में विथ टॉप मैंने किया अपनी क्लास में, पूरे क्लास में जनरल स्टूडेंट्स में मतलब। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, और चूंकि कोविड की वजह से मास्टर्स में थोड़ा इफेक्ट रहा, लेकिन वहाँ भी मेरी 70% आई आउट ऑफ 100। और उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन की, और वो भी मैंने जनरल में ही क्वालिफाई किया। और रिसेंटली मेरा एडमिशन पीएचडी में हुआ, और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है एएमयू से। और रही बात इस सफ़र में क्या क्या चैलेंजेस रहे, और उन चैलेंजेस को कैसे मेरे टीचर्स ने हल किया, सॉल्व किया, और आजकल क्या मतलब कर सकते हैं हमारे टीचर्स हमारे लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर सबसे पहली बात चैलेंज की करें तो जब मैं 8 तक पढ़ा था तब तक ये था कि मैं खुद पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, बट बोर्ड वगैरह पे नहीं देख पाता था, वो मेरे लिए चैलेंज था। और उस टाइम पे चूंकि उतना डिसेबिलिटी रिलेटेड वहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी, और मान लो अगर कोई ब्लाइंड बच्चा होता था, मान लो कोई फुल ब्लाइंड जो मतलब कंप्लीटली ब्लाइंड हो, तो उसको शायद घर में ही लोग रखते थे, क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा बहुत दिखता था, इसलिए मैं पढ़ाई के लिए आया था स्कूल में। बट उसके बावजूद भी मेरी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन उस टाइम पे जितने भी वहाँ पे फेलो ब्लाइंड थे, जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता था, जो दूर दूर भी रहते थे, वो उस टाइम पे स्कूल नहीं जा पाते थे हमारे ज़िले में। और ना कोई कंसेप्ट था ब्रेल क्या होता है, मुझे तो 10th तक भी पता नहीं था कि ब्रेल क्या होता है, या असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती है जिनको मैं यूज़ करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इस चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था, बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट नहीं था, ना कोई स्पेशल एजुकेटर था, ना इस तरह का कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जब मैं 10th में आया तो मुझे एक टीचर मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि श्रीनगर में एक स्कूल है जो जहाँ पे ब्लाइंड वगैरह को पढ़ाते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उस स्कूल में मैं कुछ दिन गया, वहाँ पे मेरी थोड़ी ब्रेल सीखी, और फिर मुझे आइडिया आया कि नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ। और वहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को देखा जो पढ़ लेते थे, और ऑडियो से भी पढ़ लेते थे। फिर मुझे थोड़ा सा ये मतलब एक हिम्मत मिली कि नहीं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। और वहाँ से मुझे एक आइडिया मिला कि देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। तो उसके बाद मैं वहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग करने गया 11th क्लास में। और चूंकि 10th का क्लास जो था, वो मैं लार्ज प्रिंटेड नोट्स जो है वो करता, ऐसे ही पढ़ता था, मतलब जो प्रिंट होता था लार्ज प्रिंट, मैग्नीफायर वगैरह, उस तरीके से मैं पढ़ता था। तो उसके बाद मैं NIVH गया, जहाँ से मैंने बेसिक ब्रेल सीखी, बेसिक कंप्यूटर सीखा जो हमें ज़रूरत काम आता है। उतना मैंने सीखने के बाद जब मैं फिर से घर वापस 11th और 12th क्लास पढ़ा, और वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्सेसिबल हुआ था, मतलब जो NCERT बुक्स थी या जो भी था, वो मैं आराम से फिर अपने हिसाब से पढ़ लेता था। उसके बाद मैंने 12th क्लास पास किया, 10th भी बड़े अच्छे नंबरात से पास किया, 12th भी बड़े अच्छे नंबरात से पास किया। मेरा डिस्टिंक्शन था 76% था 12th में। और उसके बाद चूंकि मेरी ऑलरेडी अवेयरनेस थी बाहर की दुनिया के साथ कि क्या क्या है अवेलेबल हमारे इंडिया में, क्या क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं डायरेक्ट अलीगढ़ आ गया। यहाँ पे मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, और उसके बाद बीए में यहाँ आया। पहले पहले तो चैलेंजेस आई लग रही थी, बट यहाँ और कश्मीर में मुझे ये फ़र्क लगा कि बहुत हद तक कुछ डिफरेंसेस थी। मतलब जैसे यहाँ उतना तो नहीं कहूँगा, बट इंक्लूसिव माहौल था, क्योंकि बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ की जो अवेयरनेस लेवल थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, क्योंकि वहाँ में सिंगल बच्चा पढ़ रहा था किसी स्कूल में, तो जाहिर सी बात है वहाँ उतनी अवेयरनेस नहीं थी। और उस हिसाब से मुझे यहाँ इंक्लूसिव माहौल लगा कि एक मतलब टीचर्स भी कॉपरेट कर रहे हैं, और मतलब और हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये देखा कि जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हिस्ट्री में विजुअली इम्पेयर्ड टीचर्स भी हैं, तो उससे मुझे एक हिम्मत मिली कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और टीचर्स ने भी बहुत कॉपरेट किया, जैसे परवेज आलम सर हो गए, प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक साहब हो गए, तो उन टीचर से मुझे बहुत वो किया। लेकिन कहीं कहीं पे रहता है कि देखिए, कुछ चीज़ें अगर टीचर्स करें तो वो और ज़्यादा बेहतर होती। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि क्या नाम है, अगर इंक्लूजन चाहते हो तो पूरी तरीके से इंक्लूड करो, जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं उतना तो हमें करने का मतलब हक होना चाहिए, कम से कम मैं ये बोलूँ। जैसे टीचर्स को देखना चाहिए कि अगर ये बच्चा जो है कंप्यूटर चला सकता है, तो उसको वो असाइनमेंट, इस तरह का असाइनमेंट दे जिस तरह का असाइनमेंट वो खुद बना सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो बीएड का लेसन प्लान होता है, अगर टीचर्स कुछ ऐसा करे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो खुद अपने कंप्यूटर पे ही अपना जो लेसन प्लान है वो टाइप करके लाए, वो बेहतर होगा। क्योंकि वो
फिर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अदर्स पे। क्योंकि मैंने अभी देखा एक हमारा भाई है इमरान, वो पूरा अपना लेसन प्लान बना लेता है, अच्छे तरीके से बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है उसके लेसन प्लान में। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो लेसन प्लान बनाता है तो फिर उसको एक साइटेड की जरूरत पड़ती है ताकि उसी लेसन प्लान को वो उठा के लिखे कॉपी पे, जो डिपार्टमेंट की कॉपी होती है। तो कितना बेहतर रहता, कितना अच्छा रहता अगर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जो इस चीज से जिनका भी इस तरह का होता है असाइनमेंट रिलेटेड, ताकि वो एक बच्चों को इस तरह का मौका दे ताकि ये बच्चे खुद अपना काम कर सके, ये अपना आपको आइसोलेटेड नहीं फील करा सके, क्योंकि इनको ये काम आता है, ये कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये तो एक बात होगी, और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जी बोलिए अब अयूब। जो बच्चे हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन करके उन बच्चों को कंप्यूटर फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड की जाए और उनको सिखाया जाए, ठीक है ना। यहाँ ये किया जा सकता है। और तीसरी बात, क्योंकि टीचर्स को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आजकल का जमाना है टेक्नोलॉजी का जमाना, और बिल्कुल बच्चों मतलब जब मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ कि कोई और क्यों नहीं चला सकता, वो भी अगर सीखेगा तो चला लेगा। और जैसे मैं वर्ड वगैरह टाइप कर लेता हूँ या जो भी काम होता है कर लेता हूँ। और मेरे मतलब मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी विजुअली इम्पेयर्ड ऐसे होते हैं जो इवन की कंप्यूटर में BCA किए हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसका मतलब है कि वो पूरा कंप्यूटर जानते हैं, तो पार्शली ब्लाइंड कर सकते हैं हम। जी सर, जी सर, वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो इसका मतलब है कि हम कर सकते हैं, बट ये है कि हमें मौके प्रोवाइड किए जाए, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपॉर्चुनिटीज को फिर यूज किया जाए। ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा, मैं सीख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, अब मेरी इस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे कहे बेटा तुम अपनी कॉपी, मैं आपको अपनी डायरी पे लिख के नहीं दूंगा, बल्कि आप अपना कंप्यूटर खोलिए और लिखिए, आप अपना कंप्यूटर खोलिए और अपना खुद काम करिए, ताकि अगर आपको थोड़ा सा टाइम भी लगे लेकिन आप अपना काम खुद करिए। उससे क्या होगा कि इंक्लूसिवनेस आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% मतलब इंक्लूजन मतलब अभी पॉसिबल है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन एक वो उस तरह का एक रास्ता खुल जाएगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर कहीं पे कुछ गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू इमरान। गलती आपसे नहीं है, Thank you, गलती इमरान। हमसे हुई है, हमारी सोसाइटी से हुई है, हमारे समाज से हुई है। आपने जो कहा बहुत बेहतर कहा, और हम लोग अपने फ्यूचर में हम लोग ध्यान रखेंगे सर। Participants, there is one more. I wanted to join a female visually challenged, but she is not able to join now. नेहा परवीन, आपने ज्वाइन किया? नेहा परवीन शायद ये अभी ज्वाइन नहीं की हैं। If she will join soon, I will give him opportunity. I will give her opportunity to say and share her own views. In between, I would like to just discuss. 1 minute, जरा स्लाइड खुल जाए। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. जी सर। चेंज हो रही है स्लाइड? चेंज हो रही है? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। यस सर, हो रही है। पार्टिसिपेंट्स, आपने दो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन स्टूडेंट्स की बात सुनी। जस्ट वी हैव डिस्कस एंड ही हिमसेल्फ शेयर्ड हिज ओन एक्सपीरियंसेस, व्हाट दे हैव फेस्ड इन हिज लाइफ। मेरी एक कोशिश थी कि एक लड़की भी थी, उसने भी वो भी जरा ज्वाइन कर लेती, अगर वो ज्वाइन कर लेगी अभी, क्योंकि वो शी इज इन द क्लासरूम। तो बहुत अच्छा ही होता है कि आपको दो डिफरेंट टाइप के जेंडर प्रॉब्लम सामने आते, इवन दे आर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। एक अभी अयूब ने अपना बताया जो विजुअली चैलेंज है, और एक नेहा प्रवीण जो थी वो भी विजुअली चैलेंज है, एंड शी इज द स्टूडेंट ऑफ B.Ed। अगर वो ज्वाइन कर लेती तो मैं आपको ये बताने में बड़ी मुझे आसानी हो जाती कि विद द सेम डिसेबिलिटी, विद द सेम प्रॉब्लम, हाउ द प्रॉब्लम्स डिफर, कि एक ही प्रॉब्लम है उनके साथ, लेकिन उनके प्रॉब्लम कितने तरह से डिफरेंट हो जाते हैं। But let's hope that she will join soon. But in between, I will discuss some other aspect. The Constitution of India ensure equality, freedom, justice, dignity of all individual, and implicitly mandates an inclusive society. अगर आप देखें तो ये हम हमेशा इस बात की बहुत जबरदस्त झंडा बुलंद करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। But what is the real situation at the ground level for all, including person with disabilities? In the recent years, there have been vast and positive changes in the perception. Of course,
मैं बिल्कुल इस बात से होपफुल हूं कि चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज in particular. Further, it has been also realized that their conditions may be more better if the following barriers have been removed. आपने सुना उनके क्या बैरियर्स हैं, आपने ये भी जाना कि उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, हम ये भी जानने के लायक हुए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया है अपने पास्ट की जिंदगियों में, क्या क्या हमने उनके साथ किया है और किन किन प्रॉब्लम्स को वो झेल के यहाँ तक पहुंचे हैं. लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो आई विल से दैट द बेंचमार्क बैरियर एंड दैट मस्ट बी रिमूव टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ आवर सोसाइटी. And those barriers are socio-psychological barrier, physical barrier, political barriers, financial barrier, and school, college, university itself as a barrier. So let's see, if you'll see the socio-psychological barrier, it is nothing but attitude toward the disabled children. How we behave with them, how we treat with them. अभी बिलाल ने बताया ना कि बात कहने का तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना, लेकिन the way his chairperson has treated him, has responded him, that really hurts him a lot. और वो मुझसे, आप यहाँ पर बड़ी फॉर्मल में बताया, मुझसे जब सामने बैठ कर उन्होंने बताया था तो मैं भी हिल गया था कि how a normal person and having and holding such a high position in the department can treat like this to even a disabled children. So this attitude बहुत बड़ा and बहुत माने रखता है. This is the most challenging barrier for the disabled person. ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, ये बहुत बड़ा बैरियर है. अगर हम इन बच्चों को, खासतौर जो हमारे अंडर में है, आई विल से whom we are teaching, अगर हम सिर्फ साइकोलॉजिकली एम्पावर कर दें तो मुझे लगता है कि मोर देन 50% उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. मैंने पिछले बार भी कहा था कि मैं तो इनके साथ बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, तो मैं ये देखता हूं कि इनको सिर्फ इनकरेज कर दिया जाए, इनकी पीठ को थपथपा दिया जाए, तो ये इनके अंदर एक नई, मैं कहता हूं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऊर्जा भर जाती है, एनर्जी आ जाती है इनके अंदर, और वो हम नहीं कर पाते हैं. हम उनको अनड्यू एडवांटेज तो दे देते हैं, लेकिन उनकी जो ड्यू एडवांटेजेस हैं, उनके जो ड्यू राइट्स हैं, वो हम नहीं देते हैं. बिकॉज ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि हम किसी के साथ मिसबिहेव करें, किसी के साथ बैड एटीट्यूड से पेश आए, तो वो तो हम इनके साथ भी उसी तरह कर सकते हैं जैसे अपने दोस्त के साथ, अपने खास के साथ करते हैं. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, बल्कि एडिशनल बैरियर, attitudinal barrier faced by the students with disabilities in physical emotional bullying. हम उन्हें फिजिकली चिढ़ाते हैं, फिजिकली उन्हें ट्रीट करते हैं, फिजिकली उन्हें टीज करते हैं, इमोशनली उन्हें बुलिंग करते हैं, उन्हें कमेंट करते हैं. सीरियस बैरियर टू लर्निंग एंड कैन लीड टू द आइसोलेशन एंड क्लोज. इसका नतीजा क्या होता है कि दे देमसेल्व्स आइसोलेट, अलूफ हो जाते हैं वो. सोसाइटी ट्रीट देम as they are the object of ridicule and outright ostracism in their school and community. हमारा समाज यही सोचता है कि ये तो इसी के पात्र हैं, हम इनको कुछ भी कह सकते हैं, किसी तरह से भी छेड़ सकते हैं, ये क्या करेंगे, ना दौड़ सकते हैं, ना हमको पकड़ सकते हैं, ना हमको देख सकते हैं. बट जस्ट इमेजिन, वो कहते हैं ना कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है. अगर हमने इनको तकलीफ दिया, प्रॉब्लम किया, तो इनके दिल से जो आह निकलेगी, आप उस आह का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो सीधे 7वें आसमान के ऊपर जाती है. As we society in general, it is important that consistent and strong advocacy must be given to them, considering the negative attitude and stereotype are often caused by lack of knowledge and. और एक और चीज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की आपके सामने रखने की, कि ऐसा नहीं है कि हम ये जानबूझ के करते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है इनके बारे में, हमारे पास इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई इनको एक्सेप्ट करने का कोई तरीका नहीं सिखाया गया है कि हाउ टू एक्सेप्ट देम. मैं कहता हूं कि आप किसी विजुअली चैलेंज बच्चे कोई प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं, तो आप सुबह से शाम तक अपने आंख पे पट्टी बांध के अपने घर के काम दिन भर कर लीजिए, अपने काम दिन भर घर के अंदर कर लीजिए. देन यू कैन इमेजिन द रियल प्रॉब्लम्स. आपके पैर में एक रस्सी बांध लीजिए और पैर को बिना एक पैर से चल के दिन भर अपने काम कर लीजिए, अपने खुद के काम, डेली वर्क जो आप करते हैं डेली बेसिस पे, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं. और मुझे लगता है कि दैट इज एनफ टू चेंज आवर एटीट्यूड. पार्टिसिपेंट, द नेक्स्ट एटीट्यूड प्रॉब्लम इज दैट फिजिकल बैरियर, जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको डिस्कस किया था, पिछले उसमें, कि लैक ऑफ व्हील चेयर रैम्प्स इन डिसेबल्ड. आज भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे एक प्रॉपर व्हील चेयर नहीं मिलेगा.
और अगर होगा भी तो इतनी बुरी कंडीशन में होगा कि हम और आप नहीं बैठना चाहेंगे, इनको क्या बैठने की बात किया जाए। कोई प्रॉपर इनके पास खेलने की जगह नहीं है, पार्क हो, वॉशरूम हो, टॉयलेट्स हो, ये सारे ऐसे हैं जो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए हैं। एंड दस थिंक दे आर कंस्टिट्यूटिंग इन आवर कंट्री 2.2% पॉपुलेशन, जो कि 2011 का सेंसस कहता है, आज तो और बढ़ गए होंगे। एंड दैट पॉपुलेशन इज, वो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, दैट इज मच मोर देन दी पॉपुलेशन ऑफ सिख कम्युनिटी और अबाउट सिख कम्युनिटी। इज इट सो पार्टिसिपेंट? Most education institution in educational structure, हेलो हेलो, ज्वाइन कर लिया आपने? Most education institutions do not respond the requirement. Participant, with the sorry, I will ask Neha, have you joined? Neha, can you hear me? शायद ये ज्वाइन नहीं किए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लैक ऑफ फैसिलिटीज लाइक assistive device to aid children with the particular type of disability or difficulty. Assistive technology means the product that services designed to meet the particular needs of the people with disability. अभी हमारे जो यूब साहब बात कर रहे थे रिसेंटली, अभी इन्होंने एक पेपर लिखा है जो मुझसे आज कल रात में डिस्कशन हो रही थी इनसे कि सर कैसे पेपर है, क्या इसमें कुछ कमियां हो तो बताइए। Assistive device is very much helpful for such kind of a student. एक अक्सर व्हाट्सएप पे इधर उधर जोक आता है जिसमें बोलने से दरवाजे खुल जाते हैं, आवाज लगाने से फैन ऑन हो जाता है, फैन ऑफ हो जाता है, और वही बंदा जब डेंटिस्ट के वहां जाता है अपने दांत को ऑपरेट करवा लेता है तो वो बोलता है तो कोई असर नहीं पड़ता है, सारे दरवाजे बंद रहते हैं, फैन ऑन नहीं होता है, लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के डिवाइसेस इनके लिए कहीं लगा दिए जाएं तो काफी हद तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चाहे वो टॉयलेट्स हो, चाहे वो मेन एंट्रेंस हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, केबिन हो, इनके क्लासरूम्स हो। जस्ट दे विल से ओपन द डोर विल ओपन ऑटोमेटिकली, क्लोज द डोर विल क्लोज ऑटोमेटिकली, ऑन द फैन विल ऑन ऑटोमेटिकली एंड ऑफ ऑटोमेटिकली। तो इस तरह के डिवाइसेस मुझे लगता है कि बहुत महंगे भी नहीं है, बट हाँ दैट रिक्वायर अमाउंट आल्सो, एडिशनल अमाउंट आई विल से। तो इससे इनकी प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये जो पेपर इन्होंने लिखा है असिस्टिव डिवाइस पे, असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे, ये टाटा इंस्टीट्यूट में बॉम्बे में पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, होपफुली ही विल प्रेजेंट इन अक्टूबर। तो मुझे लगता है कि इस तरह पे चीजों पे काम होना चाहिए कि हाउ मच दे कंट्रीब्यूट टू फुलफिल द ड्रीम एंड फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे लिए नहीं है सर, टेक्नोलॉजी इनके लिए भी है जो अनरीच्ड हैं, हम उनके पास कैसे पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए साबित हो सकता है असिस्टिव डिवाइस, कि हम उन तक पहुंच सकते हैं। ये अगर ऑनलाइन मोड हेल्प कर सकता है कि बिलाल कहीं बैठे हैं और ये अयूब कहीं बैठे हैं और आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो असिस्टिव डिवाइस भी इनको मेन स्ट्रीम में लाने में काफी हद तक मदद कर सकता है। पॉलिटिकल बैरियर, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल बैरियर जो है वो policy makers who have ungrasped or opposing view of inclusive education are obstacle to implementation of inclusive policy. This is very surprising कि हमारे जो politicians हैं उनको समझ ही नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, और जिनको समझ है उसमें बहुत सारे ऐसे भी पाए जाएंगे जो इसके खिलाफ में खड़े रहते हैं। अरे इतना बजट उधर क्यों जाएगा भाई, ये लोग क्या करेंगे समाज में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में। They talk like this, they behave like this, they think like this। तो आप सोचिए कि जिनकी आबादी इतनी है वो किस तरह से मेन स्ट्रीमिंग होगी उनकी, और जिनके बारे में इस तरह से सोच रखते हैं, स्पेशली दोज पीपुल हु आर पॉलिसी मेकर, हु आर फ्रेमिंग द लॉज एंड एक्ट्स। These obstacles in inclusive education consist a short list of factors that can affect a student with disabilities. In general education classroom, only a profound understanding of these factors and relevant issues that hinder the inclusion. अगर हम उनको समझा सकें और अगर हम उनसे कुछ ले सकें तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, वरना पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस इटसेल्फ इज अ बैरियर। फाइनेंस, ऑफ कोर्स नया आपने ज्वाइन कर लिया है, हेलो। फाइनेंशियल बैरियर जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए।
आप सरप्राइज करेंगे और जान के हैरत में आएंगे कि एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्स आर बिग चैलेंज टू इंक्लूजन. इंडिया इज अमंग द कंट्रीज दैट हैव अ लो एजुकेशन फॉर ऑल इंडेक्स. जो हमारे पास ग्लोबल लेवल पे इंडेक्स बनाया गया है ना, उसमें इंडिया जो है वो लो लेवल में आता है, यानी लो लेवल के ग्रुप में आता है. अब मैं उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दी रिलायबल सोर्स, उस ग्रुप से आता है. तो इतना कुछ करने के बाद जाहिर सी बात है, जब हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही छोड़ देंगे पढ़ने पढ़ाने की मेन स्ट्रीमिंग से, उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने से, तो हम इंडेक्स में, हाई इंडेक्स और मीडियम इंडेक्स में कैसे पहुंच जाएंगे? सोचने वाली बात है. एंड इन जनरल सो मेनी कम्युनिटीज आर लैगिंग बिहाइंड as far as their education is concerned in general, and in particular, and the disabled children, disabled population is also lagging behind as far as their education levels are concerned. Then how we can reach in the education for all index? हम बहुत बड़े बड़े डंगाड़े पीटते रहे कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, but the problems lies here. We have to work here. For inclusion, every institution would be required to make financial provision for providing facilities like lift, ramp, barrier free classroom toilets. Participants अगर उस डिपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग में अगर लिफ्ट लगा होता जहाँ पे बिलाल क्लास करते थे, तो शायद उनको ये सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ती कि वो डेली तीसरे मंजिल पे बैसाखी की मदद से जा रहे हैं सीढ़ियों पे चढ़ के और डेली नीचे आ रहे हैं. लेकिन हाँ, बाद में 2-4 साल बाद उनके लिफ्ट लगा, क्योंकि जब वॉइसेस बढ़े, जब लोगों ने एतराज करना शुरू किया, फिजिकली चैलेंजेस बच्चों ने जब ऑब्जेक्शन किया, तो यूनिवर्सिटी ने बजट लाके उसमें लिफ्ट भी लगवाया और आज माशाल्लाह सभी लोग, इन डिसेबल बच्चों की वजह से हम लोग भी लिफ्ट में जा सकते हैं उस बिल्डिंग में. टेक्नोलॉजी कुड बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मोशन सेंसर टू ओपन द डोर्स, मैंने अभी बताया, एंड दैट ऑफ कोर्स दैट सेंसर machine, or you can say the gadgets, requires a handsome amount, and that can be only fulfilled through the finance. And that's why if we are failed to provide finance, then automatically we will be always like the low education for all index. Participants, the next barrier is college university barrier. आप खुद सोचिए कि ये किस तरह से बैरियर है, और इस पे जरा गौर करने की कोशिश करिए कि कहाँ से ये बात रह जा रही है कि ये बैरियर है और कैसे इनको This is what I was talking about, the college university as a barrier. Enrollment and admission, that is also a barrier. मैंने बताया था उस दिन भी आपको कि हम एडमिशन लेने को तैयारी नहीं होते हैं. क्यों लें? इसकी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक बच्चा है ये तो, और ये एक अलग से में डेटा फुलफिल करना होगा, डेटा मेंटेन करना होगा, इंफॉर्मेशन देनी होगी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, यूजीसी को, और ये सारी चीजें, तमाम चीजें हम सोच लेते हैं, एंड वी ट्राई टू डिनाई, एंड utmost level we finally success not to get and not to provide admission to such type of students. And I don't know what I should say. I should say that it is shameful and heinous crime from our side. Building and infrastructure facilities. अब तो शायद बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनाई जा रही हैं. इस बात को ध्यान में रखिए कि whether the buildings are differently able friendly, disabled friendly है कि नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने इस्तेमाल किया, वो उसमें एक नॉर्मल बच्चों के लिए पानी पीने वाला होता है, तो एक नीचे बना होता है. बट द ओल्ड बिल्डिंग्स विच आर स्टिल इन ए वेरी ह्यूज नंबर इन आवर कंट्री, दे आर स्टिल क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. तो कॉलेज की बिल्डिंग हो, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो, एजुकेशन की बिल्डिंग हो, हमें उसमें जरूर इसका इंस्पेक्शन करने की जरूरत है कि वेदर दे आर डिसेबल फ्रेंडली और नॉट. क्लासरूम का जो पैटर्न है, साइज है, वो किस तरह का है, वेदर दे आर द क्लासरूम आर डिसेबल फ्रेंडली. ऐसा तो नहीं कि पुराने जमाने की तरह जो एक लेक्चर थिएटर होता था सीढ़ियों वाला, स्टेयर्स वाला, अब उस पे बच्चे चढ़े कैसे. तो दीज आर द सम बेसिक कंसर्न व्हिच arise in our part. Communication, that what I wanted to communicate you through this point, that is how you talk with these people, how we talk such kind of a student. We are talking normally or we are talking especially with a क्या कहते हैं, दया भाव से बात कर रहे हैं. नहीं, दया भाव नहीं चाहिए इनको दया भाव नहीं चाहिए, इनको नॉर्मल ट्रीटमेंट चाहिए.
Don't treat them special. Treat them normally like other student. How you communicate the things. बेटा आप परेशान ना होइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपका राइटर लिख देगा, आप तो बस बैठे रहिए चुपचाप. No, 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 not this. This is not inclusion. Participants, they need your proper communication. They want, tell them what is the fact. They want, tell them what is the theory. Tell them what is the practicality. वो ऐसे ही ट्रीटमेंट चाहते हैं. करिकुलर एज ए प्रॉब्लम, करिकुलम एज ए प्रॉब्लम. यस, वी नीड ईच एंड. अब आपको मैं एक बात यहाँ पे कहूँ, शायद आप लोग भी इससे वाकिफ होंगे, कि जो हमारा करिकुलम है वो तो नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो ऑलरेडी हमारे समाज से खत्म हो चुके हैं और हम उसे आज भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं. तो आप सोचिए कि हमारे लिए तो जनरल फॉर्म में करिकुलम को रीडिफाइन और रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और इनके लिए तो स्पेशली करने की जरूरत है. अनट्रेन्ड टीचर, जो टीचर हमारे हैं वो भी अनट्रेन्ड है. अब जैसे सपोज कर लिए, मैंने जब बीएड किया था, एमएड किया था, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई पेपर नहीं पढ़ाया जाता था. अब मैं आज कहूँ कि भाई मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. लैक ऑफ गाइडेंस सेल, कोई गाइडेंस सेल नहीं होता है. जनरल बच्चों के लिए क्या हालत है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप देख लीजिए. व्हाट टू टॉक अबाउट दी डिसेबल्ड चिल्ड्रन. दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विद सच काइंड ऑफ स्टूडेंट. पॉलिसी पर्सपेक्टिव, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, बहुत सारे पॉलिसी पर्सपेक्टिव में इस पर रोशनी नहीं डालना चाहता. बस मैं एक अलग पॉइंट पे आता हूं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप देख लीजिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई है, उसने भी इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है. मेंटल रिटार्डेशन हेल्थ एक्ट 1987 आया है, उसने भी पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू रेगुलेट एडमिशन टू द psychiatric hospitals for mentally ill person. Rehabilitation Council of India 1992 deals with the development of manpower for providing rehabilitation services for different able person with disability act. मैंने पिछले बार ही बताया था PWD एक्ट के बारे में, जो एक बहुत बड़ा कदम था डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए, जिसने कि पूरी तरह से PWD एक्ट 1995 भी आ गया, 2009 भी आ गया, 2016 भी आ गया PWD एक्ट के नाम से. आप देखिए, नेशनल पॉलिसीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, 55% रिजर्वेशन इन सीट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज. बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसलिए मैंने मेंशन किया है कि ओनली दोज हु हैव 40% और मोर डिसेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिलिंग. 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सर्टेन पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. सवाल ये नहीं है कि कानून बन गया है, पॉलिसीज आ गई, रिकमेंडेशंस आ गए. सवाल ये है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ. वी आर डीलिंग दैट ग्राउंड, वी आर डीलिंग दैट फील्ड. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, मैंने इस पे थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा पॉइंट रखे हैं. आप देखिए, NEP is the only third education policy to have been brought by the government of India since independence, and hence a complete overall कह लीजिए आप, education system is invariably expected. NEP does deliver in terms of ambitious and futuristic draft. However, it appears incongruous with the realities, the plunge of our society. काफी कुछ इसमें नई करने की कोशिश की गई है, बट अभी भी things are very much, I will say, the complicated as far as their implementation is concerned, और उस पे काम हो रहा है. The latest provision in the new education policy, new school policy, I will say, in NEP 2020 approved by India Union Cabinet in July 2020, encourage and promote the barrier-free access to education for all children with disabilities. ये उसका फोकल पॉइंट है जो खासतौर से स्कूल के बच्चों के लिए किया गया. एक दूसरा पॉइंट जिस पे NEP 2020 ने फोकस किया है वो है टुवर्ड द मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की गई है. Where value-based education shall include the development of humanistic, ethical, constitutional, and human values of truth, righteous conduct, peace, love, non-violence, scientific temper, and citizenship value. This all goes toward the inclusiveness and, of course, in equity and inclusion in higher education. That NEP 2020 has faced similar to equity in the school education. However, there are certain specifics such as academic opportunity, cost of pursuing higher education, lack of knowledge of higher educational opportunities, financial constraints, etc. This all under the step taken by the government and higher education institution. ये सारी वो चीजें हैं जो इंक्लूजन की तरफ डायरेक्टली फोकस की गई हैं. NEP 2020 makes
mission focuses on implementing steps for the education of rehabilitation of impaired people, ensuring that all structures and amenities and wheelchairs accessible and disability-friendly establishment of a cell for person with disability, that is Divyangjans, which will include representative from the administration, instructors and students. इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है, इसमें इस तरह की चीजें लाई गई हैं. Apart from this, the extensive use of technology in teaching and learning to overcome language barriers and provide more opportunities for दिव्यांगजन. जाहिर सी बात है, जब हम ज्यादा चीजें जो हम पावर पॉइंट पे बनाते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, और जो हम चॉक डस्टर से लिखते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है. मुझे लगता है कि अयूब जैसा बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट पे देख सकता है, लेकिन जो हम व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, वो बहुत मुश्किल है उसके लिए देखना. स्ट्रेंथनिंग द मॉडर्नाइजिंग द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी टू गारंटी an appropriate quantity of books and software that tailored to the requirement and interest of people with disability. ये कोई एक लाइन मैंने लिखा है, ये मैंने रिकमेंडेशंस लिखे हैं जो NEP 2020 ने इन लोगों के लिए किया है. सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज इज इंट्रोड्यूस्ड. कुछ ऐसे सेंटर्स स्टेब्लिश किए जाए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में. मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जाने, अपने अथॉरिटीज से बताएं कि अगर कुछ कर सकते हैं तो एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज स्टेब्लिश करें, जहां पे सिर्फ ऐसे ही पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन हो, रिसर्चेज हो और उस पे काम हो, प्रोजेक्ट्स हो. डेवलपिंग अ सेंसिटिव इकोसिस्टम फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी. Participant, these are the few points related to the NEP 2020. The last point which I will discuss with you in a very short, and then I will take your suggestions, questions and your observations, that what is our roles as a teacher, as administrator, because we are sometime teacher and sometime administrator also for the inclusion of such type of children. सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये कि हम उन्हें आइडेंटिफाई करें. Identifying and accepting the children with disabilities, that is the most important thing. हम आइडेंटिफाई नहीं करते, हम क्लास में कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या उनकी डिसेबिलिटीज है. और दूसरी जो चीज है, एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट इंक्लूजन. ठीक है, हमें इंक्लूजन नहीं पढ़ाया गया है. हमने भी आपसे कहा ना कि मैंने बीएड में कोई इंक्लूजन की पेपर नहीं पढ़ा था, कोई इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं पढ़ाया गया था, एमएड में भी नहीं पढ़ाया गया था. बट अगर अब पढ़ाना पड़ रहा है तो हमें पढ़ना है. अब कैसे पढ़ना है, वी आर वेरी मच नोन. हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को करेंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स पे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज आ गए हैं डिफरेंट डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो हम उसको कर लेंगे, काफी हद तक फायदा होगा. एंड वी विल बी इन टच विद सच काइंड ऑफ प्रोग्राम. दैट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट MMTTC, HRDC, MU Aligarh to organize such kind of at least 2 lectures on inclusive education. And I'm sure that this will have a ripple effect as per the faculty members who have joined this program. Developing positive attitude between normal and disabled children. एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है. हम टीचर खुद ही ये एटीट्यूड डेवलप करते हैं नॉर्मल बच्चों में कि क्लास का ये बच्चा या फलना बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है. हम खुद उनको बताते हैं और फिर हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उनके साथ कोई डिफरेंशिएशन ना करें. ऐसा कैसे होगा जब टीचर बता रहा है कि ये डिसेबल्ड है, ये कमजोर है, ये देख नहीं सकता है, ये चल नहीं सकता है, तो आप नॉर्मल बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नहीं कहेगा उसको, वो उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा. इफ यू रियली वेल विशर ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन, you tell the normal children कि he is more smarter than you because he is having more understanding level, understanding power like that. उसके बाद introducing compensatory education. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर हम उनको ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं या प्रेजेंटेशन में बताते हैं तो हम उसे बोल भी सकते हैं. इस तरह की चीजें कुछ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. Acquiring and enhancing the knowledge how to teach the disabled children. हम बढ़ा सकते हैं अपनी नॉलेज को. मैंने अभी बता दिया ना, raise the qualification, diploma and degree courses in the field of inclusive education. Psychological empowerment of the disabled children. That is that work a lot as far as disabled children are concerned. कि उनको psychologically कैसे empower किया जाए, and special care and attention is to be taken by the sports teacher. I myself have this experience that sports teachers never treat them that the
part and parcel of their sports team. मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स टीचर की मेरी खुद की शिकायत है उनसे कि वो इनको अपनी पार्ट एंड पार्सल मानते ही नहीं है। अरे भाई, एक बच्चा हैंडीकैप्ड है, आप क्या करते हैं? जब सचिन तेंदुलकर इंजर्ड हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वो बैट्समैन लेते हैं, एक रनर लेते हैं। तो आप इनको क्यों नहीं खड़ा कर सकते? इनको क्यों नहीं रनर दे सकते हैं? Suhas Alwai is a big example. रनर नहीं दे सकते हैं तो आप इनको कम से कम उस टीम में तो शामिल कर सकते हैं जहां पे स्कोरिंग हो रही है, जहां पे डेटा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा है दोनों टीमों के बारे में। दिस इज सो मेनी एग्जांपल्स यू स्पोर्ट टीचर कैन इन्वॉल्व देम। स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ये आपको सबको पता है कि हर बच्चे को 1 घंटे पे 20 मिनट्स दिए गए हैं, लेकिन हम टोटल 3 आवर्स में 20 मिनट्स या 30 मिनट देते हैं। ये एज पर एक्ट है, लेकिन हम कितना देते हैं? हम सिर्फ 20 मिनट टोटल दे देते हैं भाई 3 घंटे के बाद। और उसमें भी हम इतनी मन्नतें करते हैं इन्विजिलेटर से कि आपको आधा घंटा ज्यादा खड़ा रहना। ऐसा क्यों है भाई? आप रोटेशन कर दीजिए कि भाई हर आदमी को उस क्लास में ड्यूटी करनी है। कोलैबोरेशन कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम लोग जस्ट गिविंग देयर ड्यू राइट्स, और वो देना है। आज आप अपने तरफ से दे दीजिए, नहीं तो कल गवर्नमेंट आपसे दिलवाएगी, लॉ दिलवाएगी, एक्ट दिलवाएगी। Collaborating with the medical and psychological panels, social works, parents and special faculties. अगर ऐसा कुछ है आपके पास फैसिलिटी तो आप मेडिकल पैनल से ज्वाइन कर लीजिए, मेडिकल पैनल को ज्वाइन कराइए। ये सारे ऐसे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। पेरेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू वेरियस कॉलेज यूनिवर्सिटीज। हमने हमेशा बच्चों को फोकस किया है, कभी हमने पेरेंट्स को, सोसाइटी के मेंबर्स को, उनको कभी अवेयर करने की बात नहीं की है। इस तरह का भी काउंसलिंग प्रोग्राम होना चाहिए, गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी भी बहाने से, कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस के बहाने से, कि जहाँ पे डिसेबल बच्चे भी हों, उनके पेरेंट्स भी हों, सोसाइटी के कुछ लोग भी, और उनको बताया जाए इन सब चीजों के बारे में। तो मुझे लगता है दैट विल बी मोर इफेक्टिव इन इम्प्लीमेंटिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड ब्रिंगिंग द मेन स्ट्रीम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज सोसाइटी। Construction of achievement tests and diagnostic tools, especially for the disabled children, adaptation and evaluation of children with special needs, and the last point, celebration of Disability Day, which we celebrate each and every year of 3rd December, organizing various events in your institution. At least one day we can दे सकते हैं ना, एक दिन तो हम उनके लिए दे सकते हैं। हम तमाम तरह के डेज मनाते हैं, हम तमाम तरह के दिवस मनाते हैं, तो एक दिन उनको दिया जाए और फुल दिया जाए, उनके बारे में बात की जाए, उन पर डिस्कशन किया जाए, उनकी अवेयरनेस के बारे में बात किया जाए, रैली निकाली जाए, प्रभात फेरी निकाली जाए, हम होंगे कामयाब एक दिन, इस तरह की बातें की जाए। तो मुझे लगता है कि दैट इज मोर देन एनफ टू ब्रिंग देम पार्टिसिपेंट्स। नेहा काफी देर से रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं चाहूंगा कि 5 मिनट नेहा आप अपनी बात शेयर करें, क्योंकि इसके बाद फिर लेक्चर है। नेहा आपने ज्वाइन कर लिया ना? नेहा परवीन, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम सर। जल्दी से आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। नेहा क्लास में थी, इनका बीएड का इंटर्नशिप चल रहा है। थैंक यू नेहा फॉर ज्वाइनिंग अस। बीइंग अ फीमेल विजुअली चैलेंज, काइंडली शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस अबाउट द चैलेंजेस, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं टीचर्स से, खासतौर से लड़कियों के लिए, बिकॉज सो मेनी फीमेल टीचर्स आर इन दिस प्रोग्राम। नेहा प्लीज। Thank you so much, sir. Assalamu alaikum and good morning, everyone. My name is Neha Mehdi and I am pursuing B.Ed from Department of Education, Aligarh Muslim University. जैसा कि सर ने बताया कि अभी हमारी इंटर्नशिप चल रही है, तो आई एम विजुअली इम्पेयर्ड एज वेल। तो कुछ चैलेंजेस हैं, नो डाउट। नॉर्मली भी फीमेल्स को चैलेंजेस फेस करने होते हैं, और फिर हम विजुअली चैलेंज फीमेल्स हैं, तो और भी चैलेंजेस हमें डेली लाइफ में और फिर स्कूल लाइफ में हमें फेस करने होते हैं। फर्स्ट जो चैलेंज है बड़ा, वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी एवरीवन के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है यहाँ का, या फिर हमारे डिपार्टमेंट का, मतलब एवरीवेयर आई सॉ अ थिंग कि यहाँ पे चीज़ें बहुत इस तरह से नहीं बनाई गई हैं जिससे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड की मोबिलिटी स्मूथ हो सके। फॉर एग्जांपल कहीं भी स्टेयर्स स्टार्ट हो जाती हैं, कहीं भी वो ख़त्म हो जाती हैं, हमें आइडिया नहीं हो पाता है। तो मेरा सबसे पहला चैलेंज तो यही रहता है, कहीं भी मोबिलिटी इतना स्मूथली नहीं है। फॉर एग्जांपल आई एम इन अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज,
तो यहाँ पे भी it is also the part of Aligarh Muslim University. That's why I am pointing out some issues. तो इसमें भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि लाइक वी आर विजुअली इम्पेयर्ड, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे उस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सबसे पहला जो इशू होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड द नेक्स्ट इशू इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं आप लोग को बताती चलूँ कि आई एम लेट ब्लाइंड। मैं 13 और 14 ईयर्स की थी व्हेन आई लॉस्ट माय विजन। तो उस वक्त हम लोग को इनफैक्ट पता भी नहीं था कि एजुकेशन होती है या एक विजुअली इम्पेयर्ड कैन स्टडी। तो चीज़ें खैर बढ़ी आगे, हम लोग को पता चला। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि जहाँ भी आपको कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड या कोई भी डिसेबल, कोई भी डिफरेंटली एबल किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आपको दिखे, तो आप प्लीज़ उसको एजुकेशन के बारे में और एकेडमिक्स के बारे में बताएं कि पढ़ा जा सकता है। और जैसे पढ़ाई के बाद फिर हमारा जो चैलेंज होता है, सर ने बताया कि क्लासरूम में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। लाइक टीचर कोई स्पेलिंग ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है उसकी स्पेलिंग। कई बार टीचर से पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछ पाते हैं क्योंकि वक्त नहीं होता है या सर टीचर आगे निकल जाते हैं। तो ये एक इशू होता है। और दूसरा, जैसे अभी हम बीएड इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसमें सर मैं एक ये चेंज चाहती हूँ। हमारे लिए ये होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हम लेसन प्लान बना रहे हैं, तो सर हम उस पर बहुत डिपेंडेंट हैं दूसरों पे कि हम लिखवा के लाएं फिर उसको चेक करवाएं। तो सर मैं चाहती हूँ कि डिजिटली ऐसा कोई फॉर्मेट बने कि हम लोग अपने आप से अपने कंप्यूटर पे टाइप करके इसको बनाएं और फिर आप लोग उसको चेक करके उसी पे फिर हमें रिमार्क्स मिलें। और सर जैसे ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, तो अभी सारे स्टूडेंट्स की तरह हम क्लास के बाहर लिख के उस पर सिग्नेचर नहीं करा पा रहे हैं। तो सर ये भी एक इशू हम लोग को फेस करना पड़ रहा है अभी बीएड में। और सर उसके अलावा टीचिंग प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है, बस ये है कि आगे जाके हमें। और सर मैं एक इशू ये भी रेज़ करना चाहती हूँ इस मीटिंग के ज़रिए कि सर हम लोग सिर्फ स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो है इंडिया में स्पेशल स्कूल्स बहुत कम हैं। तो हमें दूसरे स्कूल्स, ज़्यादातर नॉर्मली स्कूल्स में हमें भेजा जाता है जहाँ नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि कुछ वीक्स हमारी ट्रेनिंग नॉर्मल स्कूल्स में भी एज अ इंटर्न होनी चाहिए, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो और हमें चीज़ें नॉर्मल स्टूडेंट्स के बारे में पता चले। सर वी वांट टू नो कि एज अ जेंडर अगर कोई इनको इशू हुआ हो तो उसको भी हम लोग चाहते हैं, बिकॉज ऑफ वी वांट जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑल्सो। ओके, थैंक यू मैम। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो फीमेल को हमारी सोसाइटी इस तरह देखती है। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट है लेकिन अभी हमारी घर में सोसाइटी में इस तरह से देखा जाता है कि क्या होगा, कैसी सोसाइटी है कि एक नॉर्मल लड़की भी सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो ये कैसे करेंगी, वो चीज़ें होती हैं। तो वो जो है साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट है लोगों के माइंड पे कि एक फीमेल है और विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह नहीं गुजार सकती है। वो सारे इश्यूज फेस होते हैं। और ड्यूरिंग क्लासरूम तो मुझे ऐसा कोई इशू फेस मैंने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कि मुझे कुछ जेंडर सेंसिटाइजेशन का इशू वहाँ फेस करना पड़ा हो या फिर कोई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन एज अ फीमेल, एज अ विजुअली इम्पेयर्ड हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अभी कभी नहीं हुआ है, लेकिन सोसाइटी में हाँ हमेशा होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, madam. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Is studies there or left? Also left. I think left. Left. There is not